Hello, my dear students, and I hope everybody is doing perfectly fine. So, today we'll be discussing a rare case which I have already published, and that is very common thing. The case is very rare, but the technique with which we can detect this case, this organism, that is more important. That's why I want to discuss with such a simple test. You can diagnose a lesion which can prevent so many complications in a patient. So this is actually, so today what we'll be doing is, we'll just go through one rare case. This low-grade squamous intraepithelial lesion, you call it as LCIL also, with chlamydia trachomatis infection in pap smear. So basically, I'm trying to highlight the importance of a simple test, that is pap smear, which can help you in detecting, in fact, the malignant cervical malignancy in very early stage. Fine, and along with association of this rare organism, that is chlamydia. So this is the case report. This case is actually very close to my heart because we had actually worked upon this case so much. Patient case tree. This case had come to us when I was doing my senior residency in our Ramanole Hospital, New Delhi. In cytology, my head was Dr. Manju Kaushal ma'am. And this case is important in the fact that कि गायनी से हमारे पास बहुत पैप स्मेयर आते थे which we had to report. एंड उसमें आपको ये ऑर्गेनिज्म ढूंढना, दिस वाज एक्चुअली लाइक ना यूरेका यूरेका कंडीशन हो रही थी हमारे डिपार्टमेंट में, लाइक दिस समथिंग कुछ और है मैम. तो मुझे जब ये मिला था, आई वाज सो एक्साइटेड टू डिस्कस इट विद मैम कि मैम कुछ अलग सा लग रहा है इस केस में, कुछ ये नॉर्मल दिस एलसिल तो है बट जो उसके साथ जो हमें दिख रहा है ना ऑर्गेनिज्म विच आई हैड नॉट सीन इन माय पीजी टाइम. ठीक है, तो मैम वाज आल्सो लाइक कि हाँ, देन शी वाज लाइक शी वाज जीनियस. She is genius actually, and in fact, whatever cytology I have learned, I really owe everything to her. तो उन्होंने बताया कि चलो ये पढ़ के आना एक बार. तो फिर देन आई मूव बैक, देन बुक्स निकाली, पढ़ा, देखा हाँ ये इमेज तो इससे मिल रही है. तो इट वाज एक्चुअली एन इंटेंसिव वर्कअप. उसके बाद भी जब हमने डायग्नोज करा, देन वी हैड टू फॉलो द पेशेंट, हिज हर पार्टनर, एवरी ऑल द स्क्रीनिंग वाज डन, और सर्लॉजिकल कंफर्मेशन के बाद ही हमने ये डायग्नोसिस बनाई थी, एलसिल विद क्लेमाइडिया इन्फेक्शन इन पैप स्मीयर. फाइन. So coming to introduction, as I said, pap smear is commonly employed, a primary screening test है for detection of cervical intraepithelial lesion, or you can say cervical carcinoma in female. It can be very well utilized. और सिर्फ cervical cancer ही नहीं, that is more important, कि जो normal infection होते हैं जैसे कि कैंडिडा है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, ट्राइकोमोनास है, so many infections are there that in fact in cervical pap smear I had seen filaria organism also. Just imagine, it is so simple test and you can detect so many things with the simple test. Okay, it is very routinely done in gynecology department. It is sent to us, the pap smear. So इतना simple screening test है, and in India we know cervical cancer is very common. So if this screening test is used इन अ मास स्केल, अगर हम जहाँ जहाँ पेशेंट को अवेयर करें, एजुकेट करें, तो इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट विल बी बेनिफिटेड विद दिस सिंपल टेस्ट. तो ये सर्वाइकल मैलिग्नेंसी के साथ साथ हमारे जेनाइटल इन्फेक्शंस को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है. फ्यू ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मली तो हम जैसे कैंडिडा, वेजिनोसिस, आप ये सब सोचो, दीज आर वेरी कॉमन टू बी डिटेक्टेड इन पैप स्मीयर. ठीक है. बट कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत रेयरली हमें मिलते हैं पैप स्मीयर में, एंड उसके स्टडीज में देखा गया है कि द एसोसिएशन ऑफ दोज रेयर ऑर्गेनिज्म विद एलसिल, लो ग्रेड और हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेसिया, इज वेरी लाइक इट हैज बीन स्टडीड इन लिटरेचर कि इनके एसोसिएशन है दीज रेयर ऑर्गेनिज्म विद प्री मैलिग्नेंसी और मैलिग्नेंट कंडीशन इन पैप स्मीयर. एंड इसीलिए हमें why it has become important, see, screening test is very important. अगर आप उसको correctly report करो और within time frame report करो, so that will prevent your unnecessary treatment for the patient, right? So we are reporting, we'll be discussing a case which has a very rare association. LCL is very common, you can say it is common as we know कि pre-malignant condition है proper cervical carcinoma का, तो it is commonly seen in routine pap smear reporting, but it is associated with chlamydia, that makes it the rarer thing. ठीक है.
तो अब बहुत सारी स्टडीज विच वी ऑल्सो लाइक वेंट थ्रू, जिसमें हमने देखा कि बहुत लिटरेचर में बहुत सारे पेपर्स हैं जिसमें ये बताया है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है कि मतलब क्लैमाइडिया का प्रेजेंस कैन कॉज एलसिल, बट कुछ पेपर्स कहते हैं कि नहीं, इट मे बी अ कोइंसिडेंटल फाइंडिंग, इट इज नॉट एसोसिएटेड, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि क्लैमाइडिया की वजह से एलसिल हो रहा है, इट इज नॉट proven in some studies, but some studies prove it, so positive negative. See, जब भी हम कोई स्टडी करते हैं ना, या आप थीसिस भी करते हो कभी, तो इट इज नॉट दैट कि इन एवरी टाइम वी गेट अ पॉजिटिव कोरिलेशन. सी, स्टडी है तो नेगेटिव कोरिलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी. सो नेवर ट्राई टू मैनिपुलेट योर स्टडी कि नहीं हमारा तो पॉजिटिव ही आना चाहिए. सो दैट इज रॉन्ग इंटेंशन एक्चुअली, एंड इट इज अ रॉन्ग इंट्यूशन विच इज नॉट करेक्ट. इफ यू गेट अ नेगेटिव कोरिलेशन, राइट इट कि नहीं हो रहा. कुछ स्टडीज जैसी ये पब्लिश पेपर्स ही हैं जिनके हुए हैं, तो उनको सॉरी, तो उनको नहीं मिला एसोसिएशन क्लेमाइडिया और इसमें एलसिल में, मैलिग्नेंसी में. सो दे वर लाइक कि क्लेमाइडिया इन्फेक्शन होना इज नॉट अ रीजन टू हैव एलसिल इन दैट पेशेंट, राइट? So in our case, this pap smear was obtained from a 42-year-old female who was referred to gynecology department because she had complaints of dysfunctional uterine bleeding and vaginal discharge. Parity 3 means 3 living children tha usse, and she did not have any other clinical symptom or any chronic illness. Just with parity 3, she had dysfunctional uterine bleeding and vaginal discharge. For that, she had come to gynae department. रूटीन लैब पैरामीटर्स करे गए उसके, जैसे कि पेरिफेरल स्मीयर, कंप्लीट ब्लड काउंट, एवरीथिंग वाज विद इन नॉर्मल लिमिट. फिर उसका रूटीन पैप स्मीयर लिया गया. सो व्हेन एग्जामिनेशन वाज डन, जब हमने पैप स्मीयर को वी सॉ इट अंडर माइक्रोस्कोप, तो व्हाट वी गॉट प्रीडोमिनेंटली सुपरफिशियल इंटरमीडिएट एंड फ्यू पैराबेसल सेल्स थे जो नॉर्मल. दीज आर द स्क्वामस टाइप्स ऑफ स्क्वामस सेल्स व्हिच वी आर सीइंग. बट उसके साथ हमें क्या दिखा कि बहुत मैच्योर स्क्वामस सेल्स के जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियर चेंजेस बहुत प्रोमिनेंट थे. सो दे हैड अ एनलार्ज्ड हाइपोक्रोमैटिक न्यूक्लियाई विद मॉडरेट एनाइसो. हाइपोक्रोमैटिक इज डेंस डार्क क्रोमैटिन, ठीक है, न्यूक्लियस का. Then anisonucleus is the variation in the size and shape of the nucleus. Nuclear membrane, जो nucleus की membrane है वो irregular थी, and there was a perinuclear clearing or a halo surrounding the nuclei. So these features supported the presence of low-grade squamous intraepithelial neoplasia or lesion. LCL is low-grade squamous intraepithelial lesion in the pap smear. So see this image. इसमें देखो, मैं बता रही हूँ क्या देख रहे हो आप. बाइन्यूक्लिएशन देखो, ठीक है. फिर आप इस सेल को देखो, दिस सेल सच एन इरेगुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस होती है बीच की, ठीक है. सो व्हाट यू आर सीइंग कि डार्क है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इरेगुलर है, ठीक है, एंड यू आर सीइंग अ पेरी न्यूक्लियर हेलो. इसके सराउंडिंग में देख रहे हो हाउ इट इज कमिंग, फाइन. तो एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में आपको गैप दिखता है. यू कैन अप्रिशिएट इट इन मोर, ठीक है. यहाँ देखो, ये देखो, दिस यू कैन सी, फाइन. सो एक हेलो मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है. पेरी न्यूक्लियर हेलो है, इरेगुलर मेम्ब्रेन है, डार्क न्यूक्लियाई है. यहाँ तो और बड़ी हो गई न्यूक्लियस, ठीक है. बाय न्यूक्लिएशन हो रहा है. ऑल द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर इरेगुलर, फाइन. सो दीज आर the changes which is supporting your low grade squamous intraepithelial lesion. फिर कुछ न्यूक्लियाई भी जो सेल्स थे उसमें बाइन्यूक्लिएशन थी, किसी किसी में मल्टी न्यूक्लिएशन भी थी, उसकी इमेज भी है हमारे पास. सो दीज ऑल आर आर केस. सो वी रिपोर्टेड दिस एंड पब्लिश दिस. इसमें बहुत फ्रैंक एलसिल आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ देखो मल्टी न्यूक्लिएशन हो रही है सेल्स में, ठीक है. फिर यहाँ पे आप देखो पेरी न्यूक्लियर हेलो, irregular nuclear membrane, perinuclear halo, dense chromatin, न्यूक्लियस की साइज बड़ी हो रही है, ठीक है. सो दिस वाज एलसिल. सो हमने एक फाइंडिंग तो मतलब वी गॉट इट, लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन. अब सेकेंडरी जो हमारा रेयर एसोसिएशन है, जो अभी मैंने आपको फाइंडिंग दिखाई ना, ये कॉमनली हम देखते हैं पैप स्मीयर में. प्री मैलिग्नेंट कंडीशन डिटेक्ट करने में पैप स्मीयर हमारी हेल्प करता है, जिसके बाद वी डू बायोप्सी एंड देन वी रिपोर्ट इट अकॉर्डिंगली, फाइन. तो इसमें अब क्या था, कुछ सेल्स में ना जो मैंने देखा था, यूरेका वाली जो फाइंडिंग थी ना हमारी की, वो ये थी क्लेमाइडिया. सो फ्यू सेल्स इट शोड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कोकोइड बॉडीज with a clear halo and vacuolated cytoplasm consistent with elementary body of Chlamydia trachomatis. अभी हम ना क्लेमाइडिया के कौन कौन से फॉर्म हमें पैप्स में दिख सकते हैं, that I'll be discussing, ठीक है. प्राइमरी और सेकेंडरी जो एलिमेंट्री बॉडी है. तो इसमें देखो
बाकी फीचर्स ना उस पैप स्मीयर के हैं कि इस पैप स्मीयर में हमें एंडोसर्वाइकल सेल्स नहीं मिले, बैकग्राउंड में मॉडरेट इन्फ्लेमेशन था. दोज इमेजेस आई हैव नॉट पुट हियर. आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट एलसिल क्राइटेरिया एंड क्लमाइडिया क्राइटेरिया. फाइन. यहाँ पे छोटा सा आपको दिख जाएगा, ये देखो साइटोप्लाज्म में आपको छोटू सा, आई शो यू द हाई पार्ट. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये राउंड देखो. मतलब साइटोप्लाज्म है, एक सेल है, ये है तो आपका स्क्वामस सेल. ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस. और साइटोप्लाज्म में देखो ये जो छोटा सा राउंड बॉडी यू आर सीइंग विद द डॉट एट द सेंटर, दैट इज द प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडी ऑफ क्लमाइडिया. यहाँ पे भी है पुट एरो बड़ा वाला जो नीचे है ना यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमको दो बॉडीज दिख रही हैं इसके अंदर. वाइट छोटा छोटा व्हाइटिश ब्राउन बॉडीज यू कैन सी एंड विद द डॉट एट द सेंटर. So that is your primary elementary. एक और हाई इमेज है इसकी, हाइपर इमेज. दिस इज अंडर ऑयल इमर्शन. तो इसमें देखो यहाँ पे आप अप्रिशिएट करो दिस. ठीक है, फिर यहाँ अप्रिशिएट करोगे इसके अंदर. देखो ये बहुत क्लियर पिक्चर है. Two bodies you are seeing inside one cell. So these are the cocci, the primary elementary body of chlamydia. Fine. एक प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडी मिली. और रेयर पता है हमारे इस केस में क्या था? वी गॉट द अनदर finding of chlamydia. Both are large cytoplasmic inclusions with eosinophilic center, which was also seen in our squamous cell. अब देखो इसमें देख कितना सुंदर बॉडी है ये. This is a squamous cell. ठीक है, this is your nuclei which is irregular, L cell वाला ही है. ठीक है, and there's round, very round, prominent inclusion body with a round center. ये है inclusion secondary bodies of chlamydia. इसमें देखो इट इज हैविंग अ टीयर ड्रॉप सेल. देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, स्क्वामस सेल का, और ये है हमारा सेकेंडरी बॉडी. सो सी, बट जब हम रिपोर्ट करते हैं तो सपोज वी आर रिपोर्टिंग एल सेल, आपने रिपोर्ट कर दी, बट व्हेन यू आर रिपोर्टिंग अ रेयर ऑर्गेनिज्म यू हैव टू लाइक डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर जो आपके इंटरफेयर कर सकते हैं. यू कैन से इट अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस और any changes because of your chemotherapy, radiotherapy. क्या पता इस ये patient आपको ऐसी proper, you cannot get proper history every time. So what happened? Patient sometimes hides the history. तो उसने कहीं इस केस के लिए कहीं उसने रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी ली हो कहीं. ठीक है, उसकी वजह से सेल्स में ये चेंजेस आ रहे हैं. साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन जो मैंने छोटी छोटी राउंड बॉडीज आपको दिखाई विद द डॉट एट द सेंटर, जिसको हम प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडी कह रहे हैं. सो दैट मे बी बिकॉज ऑफ उसी की तरह कुछ साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आ सकते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशंस हो सकते हैं, जो लाइक मे बी बिकॉज ऑफ सम क्रायोसर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी. बट देयर वाज नो सच हिस्ट्री इन दिस पेशेंट. हमने लिया प्रॉपर एग्जामिनेशन करके भी, देयर वाज नथिंग एज सच. एंड फाइनली before labeling it as chlamydia, what we did, we sent the sample for serological investigations also with chlamydia antibody detection test. तो वो positive था इस patient में. So this patient was definite, मतलब diagnosed with a definitive entity, that is L cell with chlamydia. हमने इस patient को label करा. And in fact, now when you diagnose a sexually transmitted disease, तो क्या होगा? तो immediately her partner was also advised to undergo screening. Fine. उसकी भी स्क्रीनिंग हुई थी. So we arrived at our diagnosis, that is low grade squamous intraepithelial lesion with coexisting chlamydia infection. So this is a very very rare case. So few points let's discuss. होता क्या है इसमें? See, cervical vaginal infections जो होते हैं they're caused usually by the fungal, bacterial agents or your parasitic agents. हमें फाइलेरिया भी मिला है cervical pap smear में. ठीक है, so it is very quick screening test. सर्वाइकल मैलिग्नेंसी तो ये इनफैक्ट लाइफ सेविंग है फॉर द पेशेंट अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, बिकॉज ये सर्वाइकल कैंसर वंस अगर ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है ना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्प्रेड. उसके बाद यूजुअल और बहुत टाइम क्या होता है, यू गेट दिस केसेस इन अ वेरी हाई स्टेज, तो आपको पैलिएटिव ट्रीटमेंट देनी होती है. उस समय आप रेडियो और सब सर्जरी करके भी कोई फायदा नहीं होता. अगर ये इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट हो जाए पैप स्मीयर में तो प्रॉपर हिस्टेरेक्टमी कैन बी डन. ठीक है, तो जो आपके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं वो लोअर डाउन हो जाते हैं. यू नीड नॉट हैव एन इंटेंसिव ट्रीटमेंट फॉर दोज केसेस अगर आप अर्ली डिटेक्ट करते हो.
ठीक है, so this technique is very simple, easier, cheaper technique है to detect any genital infection who come to gynecology department with any complaint, चाहे discharge पर vagina लेके आए, dyspareunia, bleeding, PV, dysfunctional uterine bleeding, abdominal pain. So what happens is in a sexually active female 35 के बाद it should be like a proper pap smear screening can be done so that you can detect these simple infections and pre-malignant conditions or malignant conditions. कभी कभी इसी प्रोसेस में क्या होता है, हम कुछ रेयर ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट कर लेते हैं, जो हमने किया इस केस में, जिसके लिए आपको अपार्ट फ्रॉम द मैलिग्नेंसी के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसके अलावा यू नीड अ स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट एंड टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन इन द पार्टनर ऑल्सो, फाइन, हेंस such organism needs a very timely and correct diagnosis, so proper intervention can be given. So कुछ स्टडीज हमने जो रेफर की थी, जिसमें सुलेम एट अल है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रेवलेंस रेट पे स्टडी की थी क्लेमाइडिया इन्फेक्शन की, तो वी फाउंड कि क्लेमाइडिया इन्फेक्शन पर से बहुत अनकॉमन है टू बी डिटेक्टेड इन द पैप स्मीयर, फाइन. एंड सर्वाइकल कैंसर एज आई सेड बहुत कॉमन मैलिग्नेंसी है इंडिया में, और इसमें एसोसिएशन होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का, दैट इज HPV 16-18. ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी फीमेल हु इज हैविंग द HPV 16 और 18 इन्फेक्शन विल डेवलप सर्वाइकल न्यूप्लेसिया. ऑल और नॉन तो है नहीं कि अगर HPV 16-18 हार्बर कर रही है तो देन शी विल हैव सर्वाइकल मैलिग्नेंसी, इट इज नॉट. ठीक है, बट फिर HPV के साथ साथ स्टडी और जो स्टडीज होती है ना, देयर इज नो एंड टू एनी काइंड ऑफ स्टडी, फाइन. सो व्हाट हैपेंड, HPV इन्फेक्शन के साथ साथ कुछ अदर को फैक्टर्स भी स्टडी किए गए कि सर्वाइकल मैलिग्नेंसी क्यों है. एक एजेंट है HPV एसोसिएशन 16-18, बट देयर आर मेनी अदर कॉजेज आल्सो. सो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट इज अ वेल नोन फैक्ट. And patient, how female presents with mucopurulent cervicitis, urethritis और salpingitis. ठीक है, and the worst part is कि अगर pregnant female में होता है, then it can affect newborns also, fine. And infertility भी होती है because of chlamydia infection. So chlamydia has loads of complication with it. So along with pregnancy related complications में chlamydia can, अगर pregnant female को chlamydia है, then she can have PROM, that is premature rupture of membranes. ठीक है, premature delivery हो जाएगी, postpartum endometrial infections हो सकते हैं. ठीक है, and it has chlamydia infection किसी किसी पेपर में it has, किसी ने स्टडी करा है, it has association with follicular cervicitis and carcinoma in C2 also. ठीक है, I've done a simple flow chart, जिसमें आप पैथोजेनेसिस आप देख सकते हो कि सपोज देखो स्टार्टिंग में एक मैच्योर स्क्वामस सेल है हमारे पास, अगर उसमें persistent HPV इन्फेक्शन होता है, वो इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है. ठीक है, HPV 16-18, तो दैट विल डेवलप योर सर्वाइकल डिस्प्लेसिया. बट अदर को फैक्टर्स हैं, जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमेटिस इन्फेक्शन जो हमें मिला इस पे अपने पैप में, सिगरेट स्मोकिंग, देन OCP, अर्ली सेक्सुअल लाइफ, मल्टीपैरिटी, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पेशेंट ऑन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, HLA इम्यून स्टेटस, पॉलीमॉर्फिज्म है जीन्स का. सो दीज ऑल आर को फैक्टर्स जो कि ना सर्वाइकल मैच्योर स्क्वामस सेल्स पे बार बार एक्ट कर करके सर्वाइकल डिस्प्लेसिया कराना शुरू कर देती है, एंड पेशेंट लैंड्स अप इन हैविंग सर्वाइकल कार्सिनोमा. सो दीज फैक्टर्स आर देयर जो कि सर्वाइकल कार्सिनोमा कराने में एड करते हैं. ठीक है, सो नाउ वी आर कंसिडरिंग ऑन क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस. सो क्लेमाइडिया हुआ इन्फेक्शन, ठीक है, तो क्या होता है, स्क्वामस सेल्स जो होते हैं ना वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, सी HPV भी है अगर उस पेशेंट को, तो वो वायरस वायरियन, दैट HPV वायरियन गेट्स एन एंट्री. ठीक है, तो क्लेमाइडिया एपिथेलियल डैमेज करा के कैन इंड्यूस एल सेल. तो HPV वायरियन गया, HPV वायरस गया तो इन्फ्लेमेटरी स्टेट पेशेंट गया स्टेट में. ठीक है, देन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आते हैं, तो फिर क्या होगा, इट विल सेल डिविजन एंड मेटाप्लेसिया विल स्टार्ट हैपनिंग इन द स्पर्म सेल्स. और अगर सेल इम्यूनिटी जो होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, then all these changes, epithelial changes, viral infections, so all are aided by this अगर infection है chlamydia का, so that will lead to your LC. ठीक है, तो जो सेल्स इन्फेक्ट होते हैं ना क्लेमाइडिया से, वो यूजुअली बड़े बड़े होंगे, लार्ज मेटाप्लास्टिक सेल्स, फैक्युलेटेड साइटोप्लाज्म. और कोकोइड बॉडीज हमने पढ़ी, इंक्लूजन बॉडी भी हमने पढ़ी, जो डिफरेंट स्टेजेस आते हैं डेवलपमेंट में, हम दोनों स्टेजेस हमने देखे यहाँ पे. कोकोइड was cytoplasm में small 2 rounds with a small dot at the center, और इंक्लूजन था हमारा साइटोप्लाज्म में ही होता है, बड़ा सा राउंड विद अ डेंस बेसोफिलिक सेंटर. ठीक है,
गुप्ता एट ऑल ने भी स्टडी करा है वेरियस स्टेजेस ऑफ क्लेमाइडिया, वो हमने जो देखे तो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है बेसिकली। पहला है प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडी, दैट इज द इन्फेक्टिव स्टेज विच वी गॉट इन आवर केस, फाइन एसिडोफिलिक कोकोइड बॉडीज। ठीक है, उसके बाद आता है the above stage of primary body के बाद एक localization, condensation and transformation of these bodies into fine perinuclear vacuoles containing fine eosinophilic, basophilic granular bodies. This stage is non-infectious. ठीक है, फाइनल हमारे में फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज की फाइंडिंग थी, ग्रैनुलर वाला नहीं था हमारे में। तो थर्ड स्टेज में व्हाट वी गॉट, लार्ज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स containing either a central homogeneous condensed area, देखा था राउंड बिल्कुल बटन की तरह, and with a dense condensed center, and this was also surrounded by a halo or densely packed cocoid structure. So in our case both infectious and non-infectious, जो second and third stage होती है ना वो non-infectious होती है, first stage जो थी primary that was infectious stage। तो elementary body cocoid bodies जो कहते हैं और non-infectious जो secondary बड़े बड़े inclusions से with a condensed center, both were present in our study। बट सी एज आई सेड, हमने केस रिपोर्ट जब हम फाइनल डायग्नोसिस दे रहे थे उससे पहले भी वी टुक अ डिटेल्ड हिस्ट्री टू रूल आउट एनी साइटोप्लाज्मिक पैक्यूलेशन की पेशेंट को कोई पहले सर्जरी, कोई केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, क्रायोसर्जरी ये सब ना हुई हो। ठीक है, सो इन दिस पेशेंट इट वाज नॉट डन। ठीक है, एंड दिस कंडेंस म्यूकस सिक्रीशंस भी हो कहीं कहीं कंडेंस हो जाते हैं तो उसको हमें सेकेंडरी बॉडी से रूल आउट करना आना चाहिए। ठीक है, अब इस केस में इसीलिए वी नीड अ कंफर्मेटरी टेस्ट जो हमने करवाया इस पेशेंट का। ठीक है, कल्चर कर सकते हो मैकॉय सेल्स लेके, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट वी यूजिंग द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एलाइजा, पीसीआर, सो वी हैव मेनी microbiological tests which we can do to confirm the presence of chlamydia, and we did culture, we got the culture done from outside and this was present in our case। And it's also important है advise करना screening for the partner to have any such abnormality। ठीक है, सो बहुत सारी स्टडीज ने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट्स दिए हैं जो मैंने पहले बताया आपको। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है, सर्वाइकल कार्सिनोमा विद क्लेमाइडिया, ये रिस्क, ये मेडेलिन एंड स्मिथ एट ऑल दे गॉट अ पॉजिटिव कोरिलेशन। उन्होंने अपनी स्टडी में देखा तो उनको लगा कि यस क्लेमाइडिया हैज एसोसिएशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी। Similarly, Gopal Krishna V et al. And Lehman et al. They also that HPV positive sample जो थे, जैसे एक ट्रायड मान लो आप, इसने कहा ट्रायड है कि HPV positive sample had higher prevalence of Chlamydia trachomatis as compared to HPV negative sample। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लेमाइडिया ने क्या किया था, हमने फ्लो चार्ट में देखा था, एपिथेलियल सेल डैमेज करा था जिससे वायरियन की एंट्री हुई थी। तो HPV विद को इन्फेक्शन, तो बहुत स्टडीज ने को इन्फेक्शन ऑफ क्लेमाइडिया विद HPV पढ़ा, बहुत स्टडी ने रिसर्च करा that chlamydia in association with like causing malignancy, but overall it gives a mixed result। Fine, and see the opposite आया जिन्होंने publish किया अपनी negative result भी, that I was saying Castle et al and D Paula FD et al, what they got, there was no association of chlamydia। उनके cases में था कि जिन patient में chlamydia था उन patients को cervical intraepithelial neoplasia नहीं थी। ठीक है, सो यू से एलसिल 1 2 3। ठीक है, तो उसमें एलसिल होता है और एक एचसिल होता है। एलसिल इज करस्पॉन्डिंग टू योर सिन 1 और एक्सिल जो होता है हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन, दैट करस्पॉन्ड्स टू योर सिन 2 एंड सिन 3। ये इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाज्म में अभी तक इन्वेजन नहीं हुआ है। ठीक है, दिस 3 चेंजेस सिन 1 2 3 दीज आर द प्री मैलिग्नेंट चेंजेस। ठीक है, मतलब आप मैलिग्नेंसी, फ्रैंक मैलिग्नेंसी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, तो इसीलिए हम सिन 1 2 3 ग्रेड करते हैं उसको। तो सिन 1 इज एलसिल जो हमारे केस का है, सिन 2 3 जो होता है हिस्टो पे हम डिस्क्राइब करते हैं, और साइटो पे वी से इट एज एचसिल, हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन। So see, important crux क्या था for our study was to report such rare organism कि जब आप पैक्स में स्क्रीन करते हो, give time to your slides। See, what my HOD was to used to tell me in my PG college कि you talk to your slide। Fine, see what finding आपको, and second most important thing कि you see what your mind knows। So that's why studying is very important। Proper study is important than what you are seeing। अगर आप, मुझे पता ही नहीं होता कि ये क्लेमाइडिया ऐसा दिखता है तो I would not have been able to report it। Fine, I would not have been able to go and tell to my ma'am that ma'am something is different in this case which we need to study। Fine, so Chlamydia trachomatis को डिटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो इन्फेक्शन ट्रीट हो जाए एलसिल के साथ, ताकि और कॉम्प्लिकेशंस हम प्रिवेंट कर सकें, कर्टेल कर सकें डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल नियोप्लेजिया टू फर्दर स्टेज ऑल्सो।
चक्रवर्ती एट ऑल ने भी रिपोर्ट किया that chlamydia infection is the most common organism which is associated with sin. ठीक है? And chlamydia infection is also associated with eightfold risk in having an unhealthy cervix. So see, this infection has so much of complications. ठीक है? भाटला एट ऑल को कोई एसोसिएशन नहीं मिला क्लेमाइडिया एचपीवी और सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूक्लियस बिकॉज सी स्टडी इतनी वेरिएशंस क्यों होते हैं बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस होते हैं सी जब आप कोई स्टडी करते हो अगर आपके सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं तो यू विल बी एबल टू गेट अ मोर जनरलाइज्ड रिजल्ट हम एक एग्जाम्पशन होता है कि अगर हम 400 पेशेंट देख रहे हैं या हम 200 पेशेंट में सैंपल दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जब आप 400 पेशेंट की सैम्पलिंग करके आप एक रिसर्च करते हो तो दैट इज मोर रिलायबल as compared to what you are doing on 200 patients. Simple है ये फंडा फाइन. और एक और चीज थी कि हम जितने यंगर विमेन को इन्वॉल्व करेंगे स्टडीज में और उनमें अगर सीटी इन्फेक्शन है क्लेमाइडिया तो हम उनको मॉनिटर कर सकेंगे थोड़े लंबे टाइम के लिए कि वेदर these young women with chlamydia infections are developing HPV infection or malignancy in future. ठीक है तो उसके लिए we need a separate study. तो आप एज फैक्टर से आप वो कर सकते हो कोरिलेट. So to conclude, this chlamydia trachomatis infection which we are getting in pap smear is very rare. बहुत सारे results ने studies ने show किया है कि there is a definite relation between chlamydia infection and low grade squamous intraepithelial lesion, but it should be reported cautiously and as early as possible क्योंकि एक public health importance का infection हो जाता है. Sexually transmitted disease है, common है. And can be transferred to neonates also when female is pregnant and acquires this infection. Hence, simple tool जो कि pap smear है, simple screening tool, the pap smear can be used to prevent. Prompt treatment can be given to the patient both जिनको cervical dysplasia है या फिर concurrent chlamydial infection. So these are rare case highlights the importance of cytomorphological features. जो यूजुअली जो एमडी कर रहे होते हैं पैथो में सो दे कैन सी कि क्या साइकोलॉजिकल क्लू है ठीक है टू करेक्टली आइडेंटिफाई दीज ऑर्गेनिजम्स इन पैप स्मीयर एंड व्हाट जब हम लिमिटेड स्टडी करते हैं जैसे हमने एक केस देखा है ऐसा तो इट इज रेयर तो ऑब्वियसली केसेस जितने भी रिसर्च करा होगा वो रेयर कम केसेस में ही किया है so further studies are invited to establish justify role of chlamydia whether it has an important role in development and genesis of cervical carcinoma or dysplasia. So these are my references. So we should always acknowledge from where we are taking materials. So that is references. All these studies are already been done. So thank you so much for your patient hearing. And I hope this case helps you in your reporting and in like enriching your knowledge about pap smear. Fine. Soon I'll be coming with another rare case. So thank you so much, guys. Stay calm, love pathology. Thank you so much.